Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Amit, and as you all know that I bring important informative videos for you all in my channel. So today also I have brought a very important video for you all, and this video is relevant to all the people who are not good at speaking in English language. And in this video I'll be pointing out some of the ways by which you can improve your English speaking skill. So friends, there are 4 magical points which I'm going to explain, and these points will definitely help you to increase your fluency in English language. Friends, first thing I'd like to mention here is that you have to think that English is just a language. It is not a symbol of knowledge. As I said earlier, that English is only a language, it's not a symbol of knowledge. If a person knows how to speak English, it does not mean that he knows more than you or he has more knowledge, his knowledge is superior than your knowledge. It does not mean that. So friends, in my video I'll be pointing out 4 magical points how you can improve your English communication skill. Friends, my first and most important point in this video is that you should have burning desire to learn this skill. जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश सीखना भी एक स्किल है और आपको इसको सीखने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर लाना होगा. बर्निंग डिज़ायर मतलब कि आपके अंदर बहुत तेज़ इच्छा है सीखने की. फ्रेंड्स, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा इस चीज़ को सीखने के लिए. अगर आप इंटरेस्ट नहीं डेवलप करेंगे तो आप इस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे. अगर आप एक बार इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं तो कितनी भी कठिन परिस्थिति आएगी, आपके अंदर वो आपको ऊर्जा, आपको शक्ति मिलती रहेगी जिससे कि आप इस स्किल को सीखने की कोशिश करते रहेंगे. सो फ्रेंड्स, यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन लर्निंग दिस लैंग्वेज, एंड डेवलपिंग इंटरेस्ट विल एक्ट लाइक अ फ्यूल दैट विल कीप यू गोइंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज. So friends, my second point is that you have to increase your observation. By increasing your observation, I mean that you have to go through good chat shows. आपको chat shows देखने चाहिए, आपको अच्छे ऐसे shows देखने चाहिए जहाँ पर लोग अच्छी तरह से बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. आपको ऑब्जर्व करना है वो किस तरह से किन किन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उनका उच्चारण किस तरह से होता है, वो क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड्स नए हैं उनको वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. इस तरह की चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने वाले को देखा गया है वो जल्दी सीख जाते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट यू मस्ट बी अ गुड ऑब्जर्वर इन ऑर्डर टू लर्न एनी स्किल. कोई भी स्किल आप सीखते हैं तो आपको गुड ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है. So this is the second and most important point. Friends, my second point was increasing your observation. Now you have increased your observation, you are watching YouTube videos, you are watching chat shows, you are observing people speaking in English language, but by only observing you are not going to speak proper English. Friends, you have to practice a lot. दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं पर बैठ करके आप बाहर में, तालाब के बाहर में बैठ के आप सोचते हैं कि मैं तैरना सीख जाऊंगा, तो आप नहीं तैरना सीखेंगे, आपको पानी में उतरना पड़ेगा. So in order to learn, you have to jump into the water and then you have to learn how to swim. So English language सीखने के लिए भी आपको पानी में उतरना पड़ेगा. You have to jump into the water in order to learn this language. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ग्रुप बनाना होगा. आप अभी बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स बनते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें आप इंग्लिश में चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट मैच करता है, उनसे आप बातें कर सकते हैं. अगर आप गलत बोलेंगे तो वो आपको टोकेंगे, अगर वो गलत बोलेंगे तो आप उनको टोकेंगे. इस तरह से आप सीख सकते हैं. Friends, about practicing, I'd like to mention one thing. In past 6 years, I learned a new language as I was posted in a place where people didn't used to speak in Hindi. So I had to learn another language, and for learning this language, I used to go to children. I used to speak to them because I was not shy in front of them. So if you want to learn this language, that is English language, if there are children around you, you can go to them, you can talk to them, because you will not feel shy in front of them. आप उनके पास जाइएगा, बात कीजिएगा, आपको बात करने में कोई हेजिटेशन फील नहीं होगा, आप उनसे आराम से बात कर लीजिएगा. इस तरह से आप सीख सकते हैं. ये एक तरीका भी है. Friends, my fourth magical point is becoming copycat. ये नया चीज़ है, मैं नया चीज़ बोल रहा हूँ. copycat कहा जाता है कि कॉपी नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नकल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. क्योंकि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो नकल करते हैं, और नकल करके वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सीख जाते हैं. तो आपको कॉपी करना है. यू हैव टू कॉपी द पीपल
whom you admire, आपको जिनका लैंग्वेज अच्छा लगता है, जिनका बोलने का तरीका अच्छा लगता है, उनको आप कॉपी कर सकते हैं, आप उनका वीडियोस देख सकते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, आप अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कर सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, हर चीज़ सीखा जा सकता है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको नहीं सीखा जा सकता है। एवरीथिंग इज़ लर्नेबल। सो आई होप दिस वीडियो वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।